Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Okay, good morning students. So today, as we have already learnt the identities, a plus b whole square, it is equal to a square plus 2ab plus b square. For the second one, a minus b whole square, it is a square minus 2ab plus b square. The first one, that is a plus b whole square, students, this is square of sum. स्क्वायर ऑफ सम मतलब पहले सम किया फिर उसका स्क्वायर किया है, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड वन, a minus b whole square, it is square of difference. Square of difference, and this is equal to a square minus 2ab plus b square. Third one, which is a square minus b square. A square minus b square, this is equal, this is known as difference of squares. Difference of squares. And this is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Let's demonstrate this with the help of these activities, with the help of an activity, and then we'll be solving some questions also. Okay students, let's demonstrate the first one, that is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square by activity method. एक्टिविटी से इसको वेरीफाई करते हैं बच्चों. क्या करना है आपको? a इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ले लिया मान लीजिए, तो आप a यूनिट्स का एक लाइन ड्रॉ करें या स्क्वायर ड्रॉ करें. b if we are taking as 3 units, so this is a here. आप मेजर्स वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. Now you see, in this, if we complete a square, this is a square whose side is a plus b. तो ये पूरा स्क्वायर का जो एरिया है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा, इफ आई लेबल दिस फिगर बाय ABCD, so we get area of square ABCD will be equal to a plus b whole square. अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें यदि हम यहां पर एक b यूनिट्स का एक स्क्वायर a यूनिट्स का एक स्क्वायर कंप्लीट कर लें, आई एम कंप्लीटिंग अ स्क्वायर ऑफ a यूनिट्स. This is suppose P, this is Q here. The other one, this is a rectangle here. R point ले लिया यहाँ, और इसको कंप्लीट किया तो यहां पर एक रेक्टेंगल मिलेगा और ये एक स्क्वायर हुआ. अब आप देखिए, इसका जो एरिया है, इसका एरिया हो गया a स्क्वायर. दिस इज अ रेक्टेंगल of length a, breadth b, so its area is AB. Or area of this rectangle, see this one is length is a,
breadth is B, so its area is again AB, and this is a square of side B units, so its area is B square. अब हम क्या देखते हैं कि ये चार पार्ट्स को मिलाकर के हमने एक पूरा स्क्वायर बनाया ABCD. That means we can say here that area of ABCD is equal to area of square AQPT plus area of rectangle TBSP plus again area of rectangle DRPQ plus area of square RCSP. Area of square RCSP. So see what we get. Area of ABCD हमने पहले ही लिखा था A plus B whole square is equal to area of AQPT. इसका एरिया, this is A square plus this area, this is AB plus this area, this is again AB plus this area, so this is B square. So finally it comes out to be the result of the identity, that is A square plus 2AB plus B square. So this is the verification of the identity, that is A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. Now students, what you need to do, आपको इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए क्या करना है बच्चों? सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर कट कीजिएगा, जिसको आप लेबल कर देंगे A प्लस B. मान लीजिए आपने लिया A इज इक्वल टू 7 और B इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. आपको इसको वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको 12 यूनिट्स टू कट अ स्क्वायर ऑफ 12 यूनिट्स. By using a colored paper, suppose if you take a red color paper, आपने रेड ग्लेस पेपर से 12 यूनिट्स का एक स्क्वायर कट कर लिया. उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको एक स्क्वायर कट करना है जिसका साइज था A यूनिट्स. अब आप एक और स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर ऑफ हाउ मच यूनिट्स? 7 यूनिट्स. इसका कलर सपोज आपने ब्लू ले लिया. थर्ड वन, अगेन one square of side 5 units. Square of 5 units लेना है आपको. सपोज इसका कलर आपने ग्रीन ले लिया. फोर्थ में दो रेक्टेंगल्स कट करना है आपको. दो रेक्टेंगल्स कट करेंगे. टू रेक्टेंगल्स of sides of length 7 units and breadth 5 units. दो रेक्टेंगल कट करना है. You have taken red, blue, green. Now you take a yellow colored paper. Okay? Now what you need to do, सबसे पहले आपको एक रेड कलर का स्क्वायर ऐसे पेस्ट कर देना है व्हाइट शीट पे. उसके ऊपर
फिर आप ब्लू पेपर ऐसे पेस्ट करेंगे, दिस वन इज ब्लू, सपोज दिस इज ब्लू, ये वाला ब्लू हो जाएगा। देन ओवर दैट उसके साइड से आप यहां पर एक येलो रेक्टेंगल पेस्ट करेंगे और यहां पर भी साइड से आप येलो रेक्टेंगल पेस्ट करेंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है यहां पर, इसमें आप ग्रीन कलर का स्क्वायर पेस्ट करें। So this shows that these four figures overlap the whole red square, and hence, and do the calculations which we have just done. So that will show, verify your activity or verify your identity by activity method. Okay. Now students, let's solve some more questions based on exercise 9.5, question number 5. Of NCERT. The question is, show that let's take the first part. 3x plus 7 whole square minus 84x is equal to 3x minus 7 whole square. Now you see, whenever you have to prove something, आपको कुछ भी प्रूफ करना है बच्चों, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये कहलाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाता है आपका राइट हैंड साइड। आपको दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है और इक्वल बताना है। सो व्हाट वी डू, लेट्स सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड में है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। तो बच्चों यहां पर देखिए, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहां पर आइडेंटिटी लगाइए, इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. So we get a की वैल्यू है 3x whole square plus 2ab plus b square. अब ये माइनस 84x आपका एज इट इज है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। Then comes 9x square plus 42x plus 49 minus 84x। अब यहां देखिएगा बच्चों, ये दो लाइक टर्म्स है आपके पास, 42x minus 84x। We can simplify this, so we get 9x square minus 42x प्लस 49। ये माइनस 42x कैसे आया, 42x माइनस 84x किया तो माइनस 42x आ गया। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड, दिस इज 3x minus 7 whole square. Again this is in the form of identity, that is a minus b whole square. तो इसको हम लिखते हैं a square minus 2ab plus b square. Let's put the values of a and b. a की वैल्यू 3x whole square minus 2, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 7 प्लस b स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 9x² माइनस 42x प्लस 49. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिला था और राइट हैंड साइड का जो आंसर मिला सेम है. LHS is equal to RHS, hence proved. So this way you have to prove. You have to solve left hand side as well as right hand side. When you get both the expressions as equal, the question is solved and it is proved. Next question, students, third part of the same question. 4 by 3m minus 3 by 4n whole square plus 2mn is equal to 16 by 9 m square plus 9 by 16 n square. Again, this is the left hand side and this one is the right hand side. So let's solve left hand side first. We'll be applying the identity here. A minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. तो हम यहां पे बच्चों a की वैल्यू रखेंगे 4 by 3m, b की वैल्यू रखेंगे 3 by 4n. So we get 4 by 3m whole square minus 2. Again a, in place of a we have 4 by 3m. In place of b we have 3 by 4n plus b square 3 by 4n whole square. b की वैल्यू है 3 by 4n प्लस 2mn. ये वाला टर्म हमारा एज इट इज था तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 2mn. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई. तो 4 by 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर. और यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया. अब बचा हमारे पास सिर्फ -2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 n स्क्वायर प्लस 2mn. अब देखिए बच्चों यहां पर दिस इज -2mn, दिस इज +2mn, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगा. नाउ द रिमेनिंग दैट यू हैव इज 16 by 9 m square प्लस 9 by 16 n square. और देखिए यही आपका राइट हैंड साइड था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको सिर्फ LHS को सॉल्व करके डायरेक्टली RHS आ जाएगा, आपको RHS सॉल्व भी नहीं करना पड़ता. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप RHS को सॉल्व करके डायरेक्ट LHS पे आ जाए. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन गिवन टू यू. ओके, so students, with the help of these two examples you can complete the question number 5 of exercise 9.5 of NCERT का आप क्वेश्चन नंबर 9.5 का 5th क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं. Now we'll see what is the use of these identities, where we need to apply. use of identity कहाँ यूज करना है, नंबर्स के फॉर्म में. क्या जरूरत थी इनको पढ़ने की, तो उसका है जब भी हमें स्क्वायर फाइंड करना है, दिस इज टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मल्टीप्लाई करने के लिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. Square of any number,
वी यूज दीज आइडेंटिटीज। अब देखिए प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कैसे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you have to multiply, find the product of 83 into 85। 83 into 85 करना है बच्चों आपको। तो what we are going to do, इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 80 प्लस 3, बेस नंबर देखना है बच्चों, दोनों का बेस नंबर 80 है, सेम बेस नंबर लेंगे। 80 प्लस 3, 80 प्लस 5। Okay, see another way also we can go for it. We can also write it as 90 को बेस नंबर लेके भी लिख सकते हैं। 90 minus 7, 90 minus 5 will solve in both the ways, will get the same answer. We'll see to it. अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही। देखिए ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, देखिए ये नंबर सेम है 80 80। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5। ए इज 3, बी इज 5। आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। लेट्स पुट द वैल्यूज। So here we get x की वैल्यू रख दीजिए 80 स्क्वायर, a प्लस b 3 प्लस 5 इंटू x, x की वैल्यू 80 प्लस ab 3 इंटू 5। So that becomes 6400 plus 15 into 80। 15, so 3 plus 5, 8, 8 into 80, 8 into 80, 640 plus 3 5s are 15। अब ऐड कर लीजिए, वेरी सिंपल वन। 0 0 5 5 0 4 1 अगेन 5 4 plus 6 10 6 plus 1 7। तो द आंसर इज 7055। मल्टीप्लाई करके चेक कर ले बच्चों सही किया है। 83 इंटू 85, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 प्लस 1 41, 8 3 जा 24 2, 8 8 जा 64 68 66 सॉरी 5507 7055 करेक्ट आंसर। Got it? Let's do by this one. Still we'll be getting the same answer. Now this is x, this is a, again this is x, this is b। तो a की वैल्यू बच्चों यहां पर लेंगे -7 और b की वैल्यू लेंगे -5। सेम आइडेंटिटी यूज करना है। x की वैल्यू 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो -7 प्लस -5 इंटू 90 प्लस a इंटू b -7 इंटू -5। आप कैलकुलेशन कर लें बच्चों। 90 का स्क्वायर हो गया 8100, 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 90 will be 1080। This is -1080। 7 5s are 35। प्लस प्लस वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, वी गेट 8135 -1080। So finally again the answer is, when you subtract you will get 7055। You will get the same answer, doesn't matter what base you have taken, but you have to take the nearest base। Okay, we'll take some more examples students। Example number 2, 103 into 98। Now see 103, अब यहाँ पे 100 को बेस लेंगे बच्चों, 100 को बेस लेंगे क्योंकि इसके नियरेस्ट नंबर है 100 और इसका भी नियरेस्ट नंबर है 100। ठीक है,
तो यहां पर बेस लेंगे 100, तो 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 2। अब यहां देखिएगा बच्चों, ये देखिए ये नंबर सेम है, ये नंबर हमेशा सेम रहेगा। सो दिस इज x, दिस इज a, दिस इज b। बच्चों a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -2। ओके, सो x is 100, a is 3, b is -2। तो अब आइडेंटिटी लगाते हैं बच्चों, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। x प्लस a एक्स स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस a 3 प्लस b -2 into x, so into 100 plus a 3 into b -2. So here we get 100 square 10,000, 3 minus 2 is 1 into 100, that is only 100 minus 6, 10,000 plus 100, 10,100 minus 6, so we'll get 10,094 is the answer. So students, with the help of this you can solve question number 8 of NCERT. 8th question you can solve. Let's take one more example having decimal numbers. एक एग्जाम्पल लेते हैं डेसिमल नंबर्स वाला. Suppose if it is 7.2 into 7.3. 7.2, this can be written as 7 plus 0.2 into 7 plus 0.3. तो बच्चों ये वापस उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया. दिस इज x, दिस इज a, अगेन दिस इज x and this is b. So let's apply the identity and see. डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. x स्क्वायर तो 7 स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. सिंप्लीफाइड. 7 स्क्वायर 49, 0.2 plus 0.3 is 0.5 into 7 3.5, 0.2 into 0.3 0.06. Now we'll add these two numbers, these three numbers, 49 plus 3. अब बच्चों देखिए एडिशन में गलती मत करना, उसको ऐसा लिख लीजिए 49 3.5 0.06. अब आप ऐड करें 6 5 डेसिमल 9 plus 3 12 4 plus 1 5. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना बच्चों और अकॉर्डिंगली नंबर्स लिखिए. जब यहां पर कोई नंबर नहीं होता है तो हम उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं. सो द आंसर इज 52.56. So with the help of this, you solve question number 8 of NCERT of exercise 9.5, and also I'll be giving you some more questions for practice. Thank you. Have a nice day. Dear students, solve this worksheet.
Thank you.